Time is. I'll start then. Assalamu alaikum. My name is Kiran Ahmed, and I am the Director Operations at Parsa Echo Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to HIV Echo September session after its launch by IHITC Islamabad and Parsa Echo Pakistan. This session is in series of HIV Echo. It's in collaboration with Medical Microbiology Infectious Disease Society of Pakistan, Common Management Unit TB, HIV, AIDS, and Malaria. HIV epidemic in Pakistan, addressing stigma, and our experts for today is Dr. Malik Muhammad Umair. Before I introduce you to our experts for today's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project Echo based in USA with the objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation, so you can unmute yourself for question or raised hand option or use the chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared by Haris in the chat box. CME certification is facilitated by Afan University Karachi, and link will be shared by Ashifa in chat box. You are requested to fill it and avail the opportunity. So I will now hand over to Ms. Ashifa, who is also the facilitator for today's session, and to formally introduce our experts for today. Thank you. Thank you, Kiran. Assalamu alaikum, everyone. I am Ashifa Yaqub, working as a biostatistician at CMU. I welcome you all to today's session. I am very honored to introduce our guest speaker, Dr. Umair Malik. He is medical doctor with post-graduation in public health, having over 30 years experience of working in the health sector. He is a founder of Pakistan's first virtual platform of public health, Pak Public Health Forum, PPHF. He has experience working with renowned international organizations and also actively involved in research. He is the author of 7 articles which are published in the international peer-reviewed journal. Currently, he is serving as a HIV treatment specialist at the National AIDS Control Program and member of a review board in Journal of Public Health and Pakistan Medical Research Council. So welcome, Dr. Umair. Before proceeding with the Dr. Umair presentation, I request you all to fill the pre-test by clicking on the link I am just going to share in the chat box. This is a prerequisite if you want to get an e-certificate of this session. So we are going to give you 5 minutes to fill the pre-test. So I'm just going to share the link in chat box. So please fill the pre-test by clicking the below link. You can take 5 minutes to fill the pre-test.
Kiran, I'm audible to everyone? Yes, Ashifa, we can hear you. Okay. Okay, Rosina, there is a link in chat box. First, you need to fill the pre-test, then we will proceed with the session. So I think time is over. So we have done with the pre-test. Now I request Dr. Mer to go with his talk. Dr. Mer. I need 2 minutes to share my slides. Okay. Can you see my slides? Not yet. I have shared. If there is a delay, then Ashifa can proceed. Let me try again. I think now it will work. Yes, not so. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I will proceed with the verse from Holy Quran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. The translation is in Urdu. O my Lord, ए मेरे अल्लाह, मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर और मेरी जबान की गिरा खोल दे कि वो मेरी बात को समझे. I found this verse from the best in Quran after Rabbi Zidni Ilma. कि कम्युनिकेशन की सारी जो मोडालिटीज हैं कि जो हम चाहें और जो हमारी टारगेट ऑडियंस हैं वो हमारी बात को समझें. Please stop me if I'm very fast. My initial speed is a bit quick, and I have the management has given me 35 minutes maximum. I want to start my presentation with the acknowledgement of all who have given me this opportunity from the management of ECHO, and I feel very proud and honored to be on this forum. I have been to many presentations, but in virtual era of COVID, this is the first presentation when I am giving any presentation on a virtual forum. And I dedicate all this to the HIV people living in Pakistan across the world, which I feel are most marginalized.
all my staff across Pakistan in all the 4 provinces or working in HIV treatment centers. All the CBUs were working for key populations. All the CUPC sites were working for the IDUs in Pakistan, and all the federal and the provincial chapter of AIDS control programs in Pakistan. I also dedicate my presentation to my parents, my sister, Professor Dr. Saima Saad, who has done a lot of joint publications with me, and my mentors in HSA and in my NSCP, Dr. Sophia, Professor Shakila Zaman, Madam Junaida, Professor Samin Siddiqui, Nawa Khan, and Professor Dr. Amjad Chaudhary. Currently, I'm working in CMU, and my national coordinator is Dr. Bushra Jamil, and her colleague, Dr. Razia and Asha, was instrumental. Similarly, my supervisor at NSCP, Dr. Aisha Majid, Uzair was very supportive. All UN agencies, especially for this presentation, Mr. Rajwal and Dr. Rajwal Khan and Fahmida Khan, who have shared a lot of resources for the benefit of the participants. Dr. Pasha from WHO, UNICEF, UNODC, UNDP, all UN agencies, but especially the country team of Global Fund. And I've already requested Agnes and the country team to be the part of this. हम इसीलिए उर्दू और इंग्लिश में बायलिंगुअल होंगे, कोशिश करेंगे कि स्लाइड्स चूँकि इंग्लिश में है, हम ज़बान उर्दू में इस्तेमाल करें, लेकिन कहीं कहीं मुझे चूँकि हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स फॉरेनर्स भी हैं. Similarly, my prevention SR, which was Green Star, who worked very hard with all CBUs of the key population. Another PR of the Global Fund, who are working with IDUs Nayi Zindagi. My 250 plus colleagues in PPHF, which is a very recent virtual think tank in Pakistan. And all the physicians in Pakistan in 50 ERT centers who are working very hard to provide these services. This is lifelong support in a very difficult environment, a lot of stigma around. And the APNA Merit, I have used their YouTube videos. I promote everybody. The objective, I'm audible, Ashifa? आपको सुनाई दे रहा है? Yes, Dr. Yes, sir. I hope I'm not very fast. Objective हमारा ये है कि कुछ figures और आपके साथ data share हो और ये बताया जाए कि stigma क्या है और क्यों है, और हमें पता लगे कि ये love stigma उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं, छूत कहते हैं या क्या कहते हैं, और हमें पता लगे कि जिन लोगों के साथ हम ये स्टिग्मा करते हैं उनकी एहसासात क्या हैं, वो एहसास को महसूस करना, उस पर हम बात करेंगे. और जब स्टिग्मा होता है तो फिर हमारे पेशेंट्स और क्लाइंट्स का एटीट्यूड कैसे होता है, और हमें ऐसा एनवायरनमेंट किया जाए कि हमारे जो मरीज़ हैं वो हॉस्पिटल में आके सेफ और सिक्योर फील करें और दोबारा आएँ. अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा. 94 में मैंने पहला HIV का मरीज देखा था, वहाँ से लेके आज तक का सफ़र मैं इजहार करूंगा. मैं एक बात करूंगा डबल स्टिग्मा की कि एक तो हमारी की पॉपुलेशंस में ये डिजीज़ ज़्यादा है, IDUs, ट्रांसजेंडर्स, MSM, FSW, लेकिन जब इन की पॉपुलेशंस में जो ऑलरेडी मार्जिनाइज है, हमारे माशरे में ड्रग यूजर्स का क्या मुकाम है, जब उनको एड्स हो जाए तो माशरा उनके साथ क्या करता है, इस पर भी हम कुछ बात करेंगे. अभी इतने सारे इन्फेक्शन हो रहे हैं, कोविड हो रहा है, चिकनगोनिया है, सार्स आया, बोला आया, वो स्टिग्मा नहीं है. इवन कोविड में वो स्टिग्मा नहीं है जो जानलेवा है. क्यों? और जो रिस्क है हेपेटाइटिस बी और सी, जो पाकिस्तान में हैप सी बहुत बड़ा मसला है, उसका कंपेयर करूंगा मैं हैप बी या हैप सी के साथ HIV को, कि कितना रिस्क है डॉक्टर्स को, नर्सेज को, और ये KP जो हम कहते हैं की पॉपुलेशंस और दूसरी वल्नरेबल, इन दोनों में फ़र्क क्या है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है. मैं चाहूँगा इस लफ्ज़ के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए. अगर कोई आप इसे लिखना चाहे तो बेशक उर्दू अंग्रेज़ी में लिखे कि एम्पैथी क्या होती है. एक चीज़ होती है सिंपैथी. एम्पैथी होती है हमदर्दी से आगे की चीज़, जो मुझे समझ आई है कि किसी के जूते में पाँव रख के देखना कि वो लंगड़ा की क्यों चल रहा है, कील तो नहीं है, उसकी तकलीफ को, दूसरे की तकलीफ को फील करना. हमदर्दी से ये थोड़ा सा हायर दर्जा है. हम बात करेंगे कि ब्रिजिंग पॉपुलेशन की. जब हमारे माइग्रेंट्स आते हैं खासतौर पे KPK में बाहर से डिपोर्ट होके, तो वो जब घर आते हैं तो उनकी मासूम बीवियों को HIV हो जाता है, और फिर माओं से फिर बच्चों को हो रहा है, और एक पूरा एक विशिष्ट साइकिल है कि हमारा मैन पावर हर साल बाहर जा रहा है, और वो बाहर से खासतौर पे गल्फ कंट्रीज से वो HIV लेकर आ रहा है, डिपोर्ट हो रहा है, और उससे फिर उनकी फैमिलीज में
KPK के अंदर अक्सरियत जो है वो इसी तरह से बाहर से हमारे मजदूर लेबर्स जो है HIV लेकर आए। हम बात करेंगे कि हम जजमेंटल हो जाते हैं कि पहले ही फैसला कर लेते हैं कि चूंकि इसको HIV हो गया है तो ये गुनाहगार है, ये खताकार है, और इस पे हमारा बड़ा क्लियर है कि हम हमारा रवैया कोविड के साथ जो जानलेवा मर्ज है, पेंडेमिक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने फैसला कर लिया, हमने तय कर लिया कि HIV में करेक्टर का मसला है। और अभी जो 2019 में बच्चों की बहुत बड़ी एपिडेमिक हम कहते हैं अनफोल्ड हुई थी इंजेक्शन सेफ्टी की इश्यूज पे लाड़काना रतोदेरों में, तो वहाँ तो कोई ऐसा नहीं था, तो वहाँ पे क्यों हुआ? मैंने लिंक लगाया, डॉन की खबर है कि वहाँ पर रतोदेरों में एक बेगम को उसके हस्बैंड ने टांग दिया और कत्ल कर दिया जब उसका HIV डायग्नोसिस उसने डिस्क्लोज किया। तो डिस्क्लोजर क्या होता है और उसके खानदान पे क्या असरात पड़ते हैं? हमने तय कर लिया है कि जिसको HIV हुआ है उसको उसकी करेक्टर में कोई खराबी है, इसकी वजह से हम डिजीज को डिनाइल में जा रहे हैं। और हम जो एस्टिमेट्स हमारे हैं इस वक्त 2 लाख के करीब हैं, विच इज़ अ वेरी मॉडस्ट फिगर्स कंपेयर टू हेप सी, लेकिन ट्रीटमेंट पे 25,000 हैं और HIV ट्रीटमेंट सेंटर पे अभी 45,000 पहुंचे हैं। तो बहुत बड़ा ये गैप है, मैं आपसे शो करूंगा। स्टिग्मा की वजह से क्या होता है, फौरन तलाक हो जाती है जब बताता है मियाँ बीवी को। पहले तो शादी नहीं होती। आई हैव लॉट ऑफ सिंगल्स जो HIV पॉजिटिव हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, पता लग जाए तो आपको बताया लड़का ने कत्ल कर देते हैं। खुद गिल्ट का फिगर इतना ज्यादा है माशरे में कि सुसाइड होती है, जॉब खत्म कर दी जाती है। आज भी पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेज में हैप सी पे TB पे नहीं निकालते, लेकिन HIV के बाद इमीडिएटली फारिग कर देते हैं मेडिकल ग्राउंड्स पे। हम ब्लेम गेम करते हैं उसको कि तुमने ये किया था, और हम जो काम अल्लाह ने करना है वो अख्तियार कर लेते हैं। और हम उसको जो बुनियादी हक है, हेल्थ, ह्यूमन राइट्स का इशू है, और हमारे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम राइट टू लिव एंड राइट ऑफ हेल्थ, हम वो डिनाई करते हैं। हम बात करेंगे कि जब प्रिक हो जाए किसी को HIV का तो कितना रिस्क है हमारे डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स को। हम बात करेंगे थोड़ी सी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस की। जब हम प्रिकॉशंस की बात करेंगे तो थोड़ा सा बताएंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कौन से नहीं हैं। ये तो हमें पता है कौन से हैं, कौन से नहीं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए हिफाजती इक़दाम क्या करने चाहिए और आगे हमें कैसे बढ़ना है। ये थोड़ी सी कुछ एब्रीवेशंस हैं। अगर आप लोग चैट बॉक्स में, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, मैं पानी पी लूंगा, आप लोग 1 से 3 मिनट के अंदर क्विकली अपना नॉलेज चेक कर लें। कुछ ऑलरेडी क्विज में आ चुका है, जो क्विज में आ गया है उसको स्किप कर दें, और जो क्विज में नहीं आया, नई एब्रीवेशंस हैं, मैंने हिंट भी दी हुई है, पैप और ट्रैप, प्री और पोस्ट, आप लोग क्विकली लिख लें ताकि हमारे जो मैनेजमेंट के लोगों को अंदाजा हो जाए कि आपका बेस लाइन नॉलेज। हर डिजीज की और हर सेक्टर की अपनी टेक्नोलॉजी होती है। HIV एक पूरा सेक्टर है, इट इज़ बियॉन्ड हेल्थ। तो काइंडली मैं 2 मिनट रुकूंगा, आप लोग काइंडली इन चीज़ों के बारे में जो आपका नॉलेज है वो चैट बॉक्स में लिखना शुरू करें। थैंक यू। Participant can take 2 minutes to answer this question. अच्छा, आपने और भी कुछ ऐड करना है तो ऐड कर लें, स्लाइड आपकी थी। अगर मुझे इजाजत दें, थोड़ा सा हम बात करेंगे, विंडो पीरियड की बात करेंगे कि जब मरीज का टेस्ट नेगेटिव आता है लेकिन उसको HIV इन्फेक्शन हो चुका होता है, तो टेस्ट नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है और टेस्ट पॉजिटिव आने का क्या होता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्री टेस्ट काउंसलिंग भी की जाए और पोस्ट टेस्ट भी काउंसलिंग की जाए। पॉजिटिव आ जाए तब भी उसको बताया जाए कि क्या वजह है और कैसे आगे बढ़ना है और लिंक करना ट्रीटमेंट से। और अगर नेगेटिव आ जाए तो उसे बताना है कि नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं कि आप ठीक हैं, बल्कि आप 6 हफ्ते के बाद दोबारा तशरीफ लाएं। EID का मतलब बता देता हूँ, अर्ली इन्फेक्ट डायग्नोसिस। माँ से बच्चे को HIV ट्रांसमिट होता है, तो बच्चों के अगर माँ वायरली सप्रेस्ड नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं माँ ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चे को HIV ट्रांसमिट करेगी। उस डायग्नोसिस को बच्चे को हम 6 हफ्ते के बाद उसका PCR कराते हैं, क्वालिटेटिव PCR कराते हैं, जो अभी हमारे पास में अवेलेबल है। क्या नॉलेज है, फर्क क्या है स्टिग्मा में? एक लफ्ज होता है टैबू में और एक होता है डिस्क्रिमिनेशन में। काफी सारी चीजें ओवरलैप्ड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन जानना जरूरी है हमें कि हम आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है स्टिग्मा से, टैबू से। टैबू कहते हैं उन चीजों के जिनके बारे में हम जिक्र नहीं करते।
हम पाकिस्तान में कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं करते, वो होती हैं। बहुत छोटे बच्चों के सामने हम शादीशुदा के मसाइल डिस्कस नहीं करते, के मसाइल डिस्कस नहीं करते। इसी तरह से जब स्टिग्मा होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि अच्छा है, ये बुरा है, इसके साथ हमारा बर्ताव कैसा होगा। हमने बात की थी केपी वर्सेस वीपी। दुनिया भर में ग्लोबली यूनाइट्स का तजिया ये है कि की पॉपुलेशंस में मैंने बताया जो 4 तरह की हैं। ड्रग यूजर्स हैं, आईवी ड्रग यूजर्स हैं, ट्रांसजेंडर जिसे हम हिजड़ा सेक्स वर्कर कहते हैं, हिजड़ास कहते हैं, और मेल और फीमेल सेक्स वर्कर्स, इनको हम केपी कहते हैं, की पॉपुलेशंस। इनमें डिजीज ज्यादा है, लेकिन एक और पॉपुलेशन को हम कहते हैं वल्नरेबल, जिनके अंदर रिस्क ज्यादा है। पाकिस्तान में बात करेंगे यूथ बल्ज की, लॉन्ग रूट ट्रकर्स हैं, जो लोग माइनर्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, जेल इनमेट्स हैं, उनके अंदर खतरात ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू बाकी लोगों के बारे में। व्हाट इज डिस्क्लोजर? शायद बात हुई कि जब HIV हो जाती है, टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो हम अपने क्लाइंट को और मरीज को कैसे बताएंगे, और फिर अपने घर वालों को, खासतौर पे स्पाउस को कैसे बताना है। एम्पैथी पे थोड़ी सी बात हुई कि हमें थोड़ा सा इस पे हमदर्दी से आगे जाना है, वरना हम डिजीज को जिस तरीके से हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। एक बुनियादी चीज जो इंशाल्लाह वर्ल्ड एड्स डे पे हम आपसे दोबारा इस पे बात करेंगे कि 2 तरह की अप्रोचेज हैं एड्स को कंट्रोल करने की। एक प्रोग्रामिंग है जो हम कर रहे हैं कि एड्स को रोका जाए थ्रू की पॉपुलेशन के रोकथाम के लिए, और एक अप्रोच जो 2-3 इदारे हैं लाइक कंसर्न और केयर, इन्होंने अफ्रीका में आजमाई कि नॉन हेल्थ सेक्टर्स में जहाँ पर रिस्क है, उन सेक्टर्स में ऐसी काम, जैसे हम जेंडर मेन स्ट्रीमिंग करते हैं, जैसे हम डिजास्टर मेन स्ट्रीमिंग करते हैं, इस तरह हम HIV के रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें, इस पर हम फिर भी आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। इफ एनीबॉडी कैन गेस कि ये क्या है, आप चैट बॉक्स पे लिख लें, और आपकी स्टिग्मा के इन हेल्थ फैसिलिटीज जो आज का हमारा टॉपिक है, इसके तनाजुर में आप क्या समझ रहे हैं। आप चैट बॉक्स में लिखेंगे कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये पहाड़ है या रेत है या आसमान है या बादल है या पानी है। और आप इस सिनेरियो में आपकी व्हाट आर योर गेस, जो आपकी जहन में आ रहा है वो काइंडली लिखें। जो मैं इसको देख रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है, अगर मेरा माउस दिखा सके, हमें स्टिग्मा का ये पोर्शन नजर आ रहा है विच इज ओनली 5 to 10%, जबकि असल स्टिग्मा बहुत डीप है और बहुत लार्ज है। अगर आपको याद हो, मशहूर जहाज टाइटैनिक था जो अपनी पहली जर्नी में ही डूब गया था, और टाइटैनिक के कप्तान ने इस अपना डिसीजन लिया था, इस टिप ऑफ आइसबर्ग, ये दिस एन आइसबर्ग, बर्फ का पहाड़ है, लेकिन इसकी सिर्फ टिप बाहर है। तो टाइटैनिक के कप्तान ने इसको देख के फैसला किया था, जो गलत साबित हुआ, और टाइटैनिक इस बर्फ के पहाड़ में जो 80-90 गुना ज्यादा था से टकरा कर डूब गया। आई जस्ट वांट टू सेंसिटाइज जो लोग मौजूद हैं कि जो इशू हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे वहमो गुमान से ज़्यादा है, और जो मैंने अपने कलीग्स के साथ शेयर किया कि 94 से आज तक मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा इशू है वो है कि HIV मरीज के साथ स्टिग्मा होता है, हॉस्पिटल में होता है, और पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, पैरामेडिक, नर्सेस डिनाई करते हैं। इस पर हम बात करेंगे। मेरा सवाल ये इमर्जिंग इन्फेक्शंस पे की लिस्ट है, सॉरी, कोविड से लेके नीपा तक, चिकनगुनिया वायरस से, डेंगू, सार्स, एबोला, जो भी हैं, सवाल ये कि इन सब में थोड़ा थोड़ा स्टिग्मा है, लेकिन HIV के साथ स्टिग्मा महसूस क्यों है? आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं और आप लोग जवाब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि चूंकि HIV का ताल्लुक STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो बेशक ब्लड से भी होता है, बेशक मदर टू चाइल्ड भी होता है, लेकिन बुनियादी तौर पे STI, इसलिए हम फौरन बैड करेक्टर और गुड करेक्टर के इसकी वजह से हम अगले इंसान को हम बुरा इंसान समझकर उसके साथ हमारा बर्ताव बुरा होता है। मैं अपना तजुर्बा बताना चाहूँगा, जो मेरा तजुर्बा रहा है पर्सनल। मैंने ज़िंदगी में पहला पेशेंट एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, उसमें देखा। ये तकरीबन हाउस जॉब के बाद मेरी पहली जॉब थी। ER में मरीज देखा मैंने जो बाहर से आया था,
और उस मरीज का हमें असेस किया हमने, हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट ने यूएस ट्रेंड थे जो यूएस में देख कर आए थे कि सस्पेक्टेड किस HIV का है। उन्होंने HIV का टेस्ट भेजा और जब रिजल्ट आया तो कोई और नहीं, मैं खुद बहुत एक्साइटेड था और मैं बता रहा था कि सर ये HIV पॉजिटिव है। तो मुझे साइट पे लेकर उन्होंने मुझे बताया कि जस्ट रिलैक्स, HIV हैप बी हैप सी की तरह एक आम सी बीमारी है, इसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आई स्टार्टेड लर्निंग कि HIV भी पाकिस्तान में है। दिस वाज 1994। फिर जब मैं ICU में गया तो एक और ओवरसीज पाकिस्तानी आए और उनको HIV था और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स थे। ही वाज वेंटिलेटर। पूरा ICU स्टाफ था, उन्होंने डिनाई किया कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे क्योंकि मरीज को HIV है। डॉक्टर उमर, कुछ हैंड रेज्ड है, आप अभी मैं रुक जाता क्वेश्चन हूँ ले सकते हैं। जी बिल्कुल, मुझे ब्रेक मिल जाएगा, प्लीज मुझे बताइए। ओके, वन हैंड रेज्ड है पिरप दास की तरफ से। मुझे नजर नहीं आ कैन रहा, बी मेरे पास तो स्लाइड्स हैं, एक मिनट इसको कम करता हूँ, जस्ट अ मिनट। किरण, कैन बी अनम्यूट पिरप दास टू लिसन। आई थिंक दे शुड राइट। ये अगर सुनना शुरू कर दिया तो हम टाइम मैनेज नहीं कर हाँ, सकेंगे। टाइम हो जाएंगे। यू प्लीज आस्क एवरीबॉडी टू राइट बिकॉज अदरवाइज मैं अपना टाइम नहीं ले हाँ, सकूंगा। आप सब लोग चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं फॉर एनी क्वेश्चन। सो हम फिर प्रेजेंटेशन के बाद उसके आंसर्स देंगे। और अगर फिर भी कोई चीज रह गई अनआंसर्ड तो हम अगली डिस्कशन भी कर सकेंगे और हम अपना ईमेल भी शेयर करेंगे आपके साथ। और ये हमारा जो सेशन है, ये कोई आखिरी सेशन नहीं इंशाल्लाह, ये शुरुआत है इंशाल्लाह। मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, लेकिन ये कि लेट्स कंप्लीट आवर प्रेजेंटेशन फर्स्ट। ठीक है आशिफ? जी जी, आप कंटिन्यू करें। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि दूसरा एक्सपीरियंस मुझे ICU में हुआ जब हमारे प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन ने अपने बेटे को, जो मेडिकल ऑफिसर था यंग, उसको मना कर दिया और मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्ट किया कि वो ड्यूटी नहीं करेगा। और तकरीबन अक्सर स्टाफ ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। ये भी 94 का ही वाक़या है जब पाकिस्तान में HIV एक नई चीज़ थी। मैंने पर्सनली 99 में HIV सेक्टर में कदम रखा और मैं किसी लैब के साथ मुंसलिक था जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की स्क्रीनिंग करती थी, जहां हम हैप बी हैप सी HIV STIs XHS की स्क्रीनिंग करते थे। तो मैंने 80,000 पाकिस्तानियों की स्क्रीनिंग की और जब भी कोई पॉजिटिव आया, भले फॉल्स पॉजिटिव आया, उस जमाने में थर्ड जनरेशन अलहदा था एबॉट और रॉश का, तो मरीज के साथ बात करना बहुत मुश्किल था। और फॉल्स पॉजिटिव आने के बाद उनका डिनाइल भी था और मुझे फिर एक दो दफ़ा तो ये हुआ कि पुलिस और FIA और IB के ज़रिए भी लोगों ने कहा कि आपने ये गलत किया। तो HIV इज़ वेरी डिफ़िकल्ट हाउ टू इन्फॉर्म पेशेंट्स, रिलेटिव्स। खासा ये सेंसिटिव टॉपिक रहा है। मैं रिसेंटली लास्ट 15 जुलाई से मैं 2 माह के लिए PIMS के HIV क्लिनिक में गया था एंड इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी जब मैंने HIV मरीजों को लैब से अपने पास आते हुए देखा। उनको बताना कि आपको HIV है, अपनी आप स्पाउस को लेकर आए, अपनी बेगम को लेकर आए, हम टेस्ट करेंगे, अगर वाइफ पॉजिटिव निकली बच्चों को। तो ये पूरा एक्सपीरियंस बड़ा ट्रॉमेटिक था और इमोशनली मैं काफ़ी मज़ीद इन्वॉल्व हो गया। जो प्रोग्राम में रह के हम डिटैच हो जाते हैं चीज़ों से, PIMS के HIV क्लिनिक में जाकर मेरे अंदर ह्यूमन टच और एम्पैथी का जो अंसर था वो मज़ीद बढ़ गया। मुझे याद आ रहा है HMC में एक TG आई थी जो बुलेट वूंड इंजरी के साथ नहीं, शायद शबीर भी होंगे अभी। उनको CMO ने पहले फीमेल वार्ड में भेजा, वहाँ उन्होंने कहा कि ये तो मेल है, फिर मेल वार्ड में भेजा। इस शिफ्टिंग के दौरान उनकी डेथ हो गई। मुझे याद है कोहाट से एक HIV मदर को सीजरियन के लिए भेजा गया। कोहाट में टीचिंग हॉस्पिटल है लेकिन उन्होंने कहा HIV है, हम नहीं करेंगे, HMC जाओ। और मेरा ख्याल है माँ की या बच्चे की या दोनों की डेथ हो गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे जो सबसे अहम बात है पर्सनल स्टिग्मा के कि मैं 99 से HIV सेक्टर में हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन खास तौर पे लास्ट 7 ईयर्स से मैं नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम के साथ काम कर रहा हूँ। तो जब मैं लोगों को बताता हूँ तो मैं खुद कंफर्टेबल नहीं होता था कि HIV कैसे बताऊँ, और मैं बताता था मैं CMU के अंदर है जहाँ TB मलेरिया भी है और वो बिल्डिंग का नाम EPI बिल्डिंग है। तो ये स्टिग्मा मैं दूसरों के अंदर तलाश नहीं कर रहा, ना मैं ब्लेम कर रहा हूँ,
ये ग्राउंड रियलिटी है कि ग्लोबली HIV में स्टिग्मा है, और वो डॉक्टर्स जो डील करते हैं वो खुद इससे गुजरते हैं। इंशाल्लाह आपकी एक्सपीरियंस हम अभी सुनेंगे। मैं जब 2006 में अपनी MPH की थीसिस के लिए ब्लड बैंक का ऑडिट कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक टीचिंग हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में हैप सी की स्क्रीन तो हो रही है और HIV की किटें पड़ी हैं और नहीं हो रही, और क्योंकि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में तो HIV और एड्स नहीं है। इसी तरह एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक को मैंने देखा जहां पर एबर्ट रॉश की मशीन पड़ी थी, लेकिन HIV की सारी किट्स एक्सपायर थी। तो मुझे अंदाजा हुआ कि HIV हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हम अहमियत नहीं दे रहे। रिसेंटली जब मैं PIMS गया तो हमारे क्लिनिक के साथ डर्मेटोलॉजी क्लिनिक था, तो वहाँ मैं दिखाने गया तो मैंने अपना कार्ड दिया, तो उन्होंने कहा आप क्या क्या करते हैं। मैंने कहा मरीज, उनका पाकिस्तान में मरीज हैं। मैंने कहा सर 4000 मरीज हैं और आपके साथ वाले कमरे हैं। ऑलमोस्ट हमारी दीवार और दरवाजे साथ थे, लेकिन बेखबरी का एक अजीब आलम था कि हमारे दरवाजे पे TGs और IDUs खड़े हैं और डर्मेटोलॉजी यूनिट को पता नहीं। तो ये सूरत हाल है इस्लामाबाद में। मैं तुर्बत और गवादर और GB और फौजदार की बात नहीं कर रहा। ये एक मुझे कोट मतलब मैडम फहमीदा ने दिया था, जो इंडिया की मशहूर एक नॉवलिस्ट हैं मैडम रॉय। There is really no such thing as voiceless. They are only deliberate silenced or preferably unheard. ये वर्ड unheard मुझे पसंद आया कि भले वो चीख रहे हों कि हमें बचाओ और हमें इलाज चाहिए और हमें कॉर्नर ना करो, लेकिन माशरा कान, उनकी आवाज़ों पे कान नहीं धरता। I found this very relevant to HIV. थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे ही स्टिग्मा होता है तो उसके नतीजे में हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि गुड बॉय, बैड बॉय, काबिल और नालायक। तो डिस्क्रिमिनेशन होती क्या है कि ये हम लोगों को उनके मुख्तलिफ तासुब के ऐनक से देखते हैं। जैसे हम HIV के सिलसिले में उनको कहते हैं कि आप लाइन, उनकी बारी आती है कहते हैं आप अलग लाइन में खड़े हो जाएं, या हम बताते हैं कि ये सारे मरीज HIV पॉजिटिव हैं, या फलां स्टाफ हमारा जो है उसका तो HIV टेस्ट पॉजिटिव आ गया। हालांकि ये टेस्ट का रिजल्ट इंतहाई कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। ये सिर्फ डॉक्टर नॉलेज और मरीज के दरमियान होना चाहिए। अगर मरीज ना बताए तो अपने माँ बाप, बहन भाई से भी इसको छुपा सकता है। हमारे पास लाशोरी तौर पे एक्शन जैसे होते हैं और हमारे जेस्चर्स जैसे होते हैं। आई होप आई एम नॉट वेरी फास्ट। आसिफ नो, मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा? नहीं बिल्कुल ठीक। राइट, हमारे पास रवैये ऐसे होते हैं और हमारे पास जेस्चर्स ऐसे होते हैं जिससे ये इम्तियाज और ये स्टिग्मा बढ़ जाता है। हम ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ऐसे एक्शन, ऐसे इशारे करते हैं जिससे ये बढ़ जाता है। हम उन लोगों को ब्लेम करते हैं और शर्म दिलाते हैं कि आपने कुछ किया था तो आपको एड्स हो गई। और उससे क्या होता है, इतना स्टिग्मा माशरे में हो गया कि अब जो लोग पॉजिटिव हैं वो अपने घर वालों को, अपने ऑफिस वालों को, उनको पता है कि जैसे ही बताएंगे तो तलाक हो जाएगी और जॉब खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से ये इन्वायरमेंट ऐसा है कि कोई आगे लोग टेस्ट नहीं करा रहे। इसी वजह से हैप्सी की टेस्टिंग ज्यादा है, उसकी यील्ड ज्यादा है। HIV की टेस्टिंग ना होने के बराबर है फील्ड में। ये हमें देखना पड़ेगा कि हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम फैसला कर लेते हैं। जो काम अल्लाह मियां का है कि लोगों के बारे में फैसला करें, वो हम ले लेते हैं। हम जज बन जाते हैं कि ये इसका किरदार खराब है। खास तौर पर मैंने बताया था शुरू में, की पॉपुलेशन के साथ डबल स्टिग्मा है। एक इंसान पहले ही अल्लाह ने उसको ट्रांसजेंडर बनाया है। मैं सबको रेफर करूंगा, एक शोएब मंसूर की मशहूर मूवी है बोल, जो ट्रांसजेंडर पे बनाई गई है। बहुत क्लासिकल उसके अंदर एम्पैथी दिखाई गई है। तो जिन्होंने नहीं देखी वो उसको देखें और फिर फील करें कि अगर किसी के घर में ट्रांसजेंडर बेबी पैदा हो जाए तो फिर क्या होता है। अब वो ऑलरेडी एक्सक्लूजन का शिकार होता है और जब उसे HIV हो जाए तो माशरा उसको बिल्कुल जीने नहीं देता और हम अखलाकी तौर पर हम होते हैं ना, हम खुदाई फौजदार बन जाते हैं। इस स्टिग्मा की वजह से क्या होता है कि ये लोग आम लोगों से मेल जोल नहीं करते। आप देखें, हमारा किसी TG के साथ मेल जोल नहीं है। उनके त्यौहार अलग, उनका खाना पीना सोना अलग, वो अपने गुरु के साथ रहते हैं। इसी तरह ड्रग यूजर्स को भी माँ बाप, बहन भाई निकाल देते हैं, दफ्तर से निकाल देते हैं। तो हम लाशुरी तौर पर स्टिग्मा को बढ़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम एक्चुअली बीमारी को बढ़ा रहे होते हैं। और इसकी वजह से, जो स्टिग्मा की वजह से हमारी जो की पॉपुलेशन है, खासतौर पर जो जाहिर नहीं है, लेकिन ट्रांसजेंडर्स और IDUs जाहिर हैं,
जो मेल और फीमेल सेक्स वर्कर हैं वो जाहिर नहीं है, नतीजा वो और छुप जाएंगे और उन तक फिर हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस करना और मुश्किल हो जाएगा। तो हमें अपने आप को बदलना है, जो हमारा टारगेट ऑडियंस, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल की नर्सेज, पैरामेडिक्स, टेक्नीशियंस, हम दूसरों को बदलने के बजाय अपने आप को बदलें कि हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जब हम इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, हम आमतौर पे ड्रामों में दिखाते हैं ट्रांसजेंडर का एक्शन लेके ताली बजाते हैं, तो हम एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स को डिग्रेड कर रहे होते हैं। और ट्रांसजेंडर जो पैदाइशी हैं उनको अल्लाह ने बनाया है। इट इज लाइक आंख की डिसेबिलिटी होती है, ब्लाइंडनेस होती है, डेफनेस होती है, हाथ पांव नहीं होते, इसी तरीके से एक डिसेबिलिटी है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाएं, उसको हम शर्म ना दिलाएं, उसको जलील ना करें। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि हमारे इन सारे के सारे रवैयों की वजह से मर्ज बढ़ रहा है और वो आदमी छुप रहा है। जब वो छुपेगा, मैंने एक जगह पढ़ा कि 1 ब्लड बैग ऑफ HIV पॉजिटिव जिसमें वारीमिया हो, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए HIV फैलाने का बाइस बन सकता है। सो बहुत हाई वायरल लोड होता है ब्लड में। तो जब ये लोग ड्रग यूजर्स जब ब्लड बेचते हैं, जब माशरा इनको धुतकार देता है, तो ये खून बेचते हैं, किडनी बेचते हैं, तो ये खून फिर हम लोगों के घर में आता है। इस तरीके से आपको पता है थैलेसीमिया के कितने बच्चों को, और लड़काना में 2016 में जो डायलिसिस में आउटब्रेक हुई थी, उन सब लोगों को हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी थी। तो ये कोई मैं खलाई बातें नहीं कर रहा, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। एक तस्वीर अगर आप देखें, राइट साइड पे HIV पेशेंट है और लेफ्ट साइड पे हॉस्पिटल स्टाफ है, और आप देख सकते हैं कि ये आपस में गपशप कर रहे हैं और उस आदमी के साथ उसके चेहरे पे 12 बज रहे हैं और वो अलग है, एक्सक्लूजन है और एम्पैथी नजर नहीं आ रही। इस तस्वीर के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कमेंट में। ये HIV पॉजिटिव मरीज है और डॉक्टर और नर्स आप देखें, ये कोविड नहीं है, कोविड से पहले का। डॉक्टर के हाथ में नर्स ग्लव्स हैं, नर्स के ऊपर मुंह पे मास्क है, और डॉक्टर साहब के भी यहाँ मास्क है और ग्लव्स भी हैं, और ये भी ग्लव्स हैं। तो हम HIV मरीज को, हालांकि इन तरीकों से ये कोविड नहीं है, लेकिन ये कोविड से प्री कोविड पिक्चर है, बट द पिक्चर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर डिपिक्टिंग द ट्रू पिक्चर ऑफ आवर हेल्थ फैसिलिटीज, जो कुछ हमारे माशरे में हो रहा है। ये एक ट्रांसजेंडर है, आप देखें डॉक्टर साहब का मूड कितना खुशगवार है, और मैं कहूँगा बल्कि इंतहाई ना खुशगवार है। और अगर आप नर्स को देखें तो वो मास्क भी पहनी हुई है, अभी कोविड का जमाना नहीं, ये प्री कोविड है, और नर्स दस्ताने भी चढ़ा रही है, और डॉक्टर साहब भी काफी नाखुश नजर आ रहे हैं क्योंकि ट्रांसजेंडर के क्लिनिक में आ गए। तो फिर इसका मतलब ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल जाए ना। ये थोड़े से स्टैट्स हैं, अगर जो डॉक्टर राजवल से मैंने लिए हैं, एक्नॉलेज यूनिट्स। ये मुख्तलिफ मुल्कों की स्टडी है कि जो जैसे ही पता लगा कि इस पेशेंट को HIV पॉजिटिव है, तो उसे या तो निकाल दिया गया या उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज हो गई, और ये वेरी कर रहा है बिटवीन 1 to 35%। आप देखें कि जैसे ही HIV पॉजिटिव हुआ मरीज, तो उसकी जॉब के अंदर तब्दीलियां की, ये काम तो उन्हें नहीं करना। I went to pick my appointment letter only to be told that I had to undergo medical examination. I already knew my zero status, which I told the human resource officer. She said I had to do the examination, which confirmed to my HIV positive status. That marked the end of getting the job, as they could not recruit me even though I had passed interview. एक पेशेंट की कारगुजारी है, आप बीती कह लें कि टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने के बावजूद वो बिकॉज ऑफ हिज और हर स्टेटस उसको जॉब नहीं मिली। हमारे सेटअप में और दुनिया भर में जॉब्स के लिए, वीजे के लिए मुख्तलिफ एग्जाम्स होते हैं, उसमें खून के टेस्ट होते हैं जिसमें हैप बी, HC और एक्सरे भी देखा जाता है। लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन हम HIV के साथ करते हैं वो किसी और के साथ नहीं है। ये एक और एक्नॉलेज डॉक्टर राजवल फॉर इट्स। ये हमें कहा जाता है कि सवाए मौलिज के किसी को ना बताओ, लेकिन फ्रॉम 2% to 18% आप देखें मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, ये कोरिया है 4% या 12% है, में HR के जरिए या बगैर HR के एम्प्लॉयर मरीज का HIV स्टेटस डिस्क्लोज कर रहा है, फिर तो वो उस जगह पे काम नहीं कर रहा। फिर जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, अगर आप देखें, ये भी ये कोरिया है और ये भी तकरीबन
3% तक हो रही है, और यहाँ फिजी में देखें इट इज ऑलमोस्ट टचिंग 40%। ये एम्प्लॉयर्स का, या जैसे ही उन्हें पता लगता है कि ये आदमी है HIV पॉजिटिव, ये मर्द या औरत, ये स्टाफ मेंबर, तो उनका रवैया तब्दील हो जाता है। ये पाकिस्तान में हम हर कोई 3-4 साल बाद करते हैं, हम सर्वे करते हैं इंटीग्रेटेड, इसमें इंटरव्यूज भी हैं, बायोलॉजिकल एंड बिहेवियर, और हम HIV टेस्ट भी करते हैं। तो चारों की प्रॉब्लम की मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये IDUs हैं, पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स। 63% ने कहा है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई। ये लास्ट जो लेटेस्ट है 2016-2017 का IDBS है। ये TGs हैं, इन्होंने कहा कि 52% से भी ज्यादा ने कहा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई। Dr. Umair, जी we are running short of time. Can you conclude in 5 to 10 minutes so that we can take more questions? ठीक है, असल में क्वेश्चंस के मुकाबले में ये जो मैं चीज दिखा रहा हूँ, ये थोड़ी सी मुझे आप क्विकली जाने दें। ये सेल्फ स्टिग्मा भी होता है, और आई थिंक कि हम इसको छोड़ देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन भी हमने बात कर ली। अस्पताल में क्या होता है, इनको वापस भेज दिया जाता है, ये कहते हैं दोबारा नई लाइन में लगें, और उनकी फाइल्स, उनका नाम बताया जाता है। खामखा HIV टेस्ट सर्जरी से पहले कराया जाता है, पता होता है उनको। और जो हमारे आम प्रोसीजर्स हैं ग्लोबल इन्फेक्शन कंट्रोल के, उसमें HIV में आम यानी हैप बी हैप्सी में हम अमल नहीं करते, लेकिन HIV में हम ये करते हैं। और खास तौर पे जब मरीज को पता चल जाए ऊपर HIV पॉजिटिव, तो डबल ग्लव्स का बड़ा कंसेप्ट है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। अब मिसाल इसमें लिखी हुई है कि वही हमने बात की कि उसका हमने हायरिंग नहीं होती उसका। इसी तरह के उनको जनाजों में, आपने जनाजों में देखा हो ट्रांसजेंडर्स नहीं आते, और हम लोग ट्रांसजेंडर्स के हिजड़ास के जनाजों में नहीं जाते, शादियों में इनको नहीं आने दिया जाता, खुशी गमी में नहीं दिया जाता, और कहा जाता है कि ये तुम्हें हुजूर की तरफ से तुम्हारे ऊपर एक सजा मुसल्लत की, तुमने कोई गलत काम किया होगा तो तुमको ये सजा मिली। और फिर आपके जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ जो उस पर ब्लेम करते हैं। और ये बात समझने वाली कि जब हम किसी का स्टिग्मा करते हैं तो फिर हम उसके साथ इंसानियत वाला सलूक, इंसानी हकूक वाला सलूक नहीं कर सकते। ये थोड़ी सी मिसालें हैं, पहले बात कर चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। एक और मुझे काफी अच्छा लगा कि वी डोंट सी द एंड टू द एपिडेमिक एज लॉन्ग एज द पीपल लिविंग विद HIV/AIDS फील अनसेफ एंड आर फोर्स्ड इनटू थिंग्स ऑफ देयर कम्युनिटीज। बहुत जरूरी है कि हम जब तक ये मसला हल नहीं करेंगे, हम एपिडेमिक को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इस इम्पैक्ट का इसका वजह से उनकी एडहेरेंस, जब वो फर्स्ट टाइम आते हैं फिर दोबारा नहीं आते, मैं भी दिखाऊंगा, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और एक स्टडी है ये जिसमें मैं इन्वॉल्व था और GF सपोर्टेड थी, एडहेरेंस आउटकम स्टडी थी। हमने 2 साल 16, 17, 18 के मरीजों को पूरे साल के लिए हमने उस कोहॉर्ट को फॉलो किया। नतीजा ये है कि 35% जो थे दवाई शुरू की थी वो मरीज कभी नहीं आए। पहले विजिट में इनको ऐसा पॉसिबली ऐसा स्टिग्मा हुआ, वो हॉस्पिटल आए, दवाई लेके गए, लेकिन उसके बाद दोबारा नहीं आए। सो वी लॉस्ट 30% ऑफ पेशेंट, और 6 माह में भी सिर्फ 30% रिटेन रहे, और 12 माह के बाद सिर्फ 26% रहे। हमारा ख्याल ये है कि पॉसिबली उसको हॉस्पिटल में वो माहौल नहीं मिला जिसका वो मुस्तहिक था। इसको हम छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। ये थोड़ा सा एक है कि पाकिस्तान की एपिडेमिक की सिचुएशन क्या है। अगर आप देखें 5 से लेकर 16 तक में IDUs में इट्स ऑलमोस्ट प्लेटो हो गई है, लेकिन बाकी पॉपुलेशन के अंदर ये ग्रो कर रही है। 5% से ऊपर हो जाए तो उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एपिडेमिक। अभी इस वक्त ये जो रेड ट्रांसजेंडर्स में पहुंच गई है, और येलो इज MSM 5%। अभी सिर्फ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है FSWs में हम रोक सकते हैं, लेकिन बाकियों में हम 5% का जो क्रिटिकल मैस है वो क्लियर कर चुके हैं। ये प्रोग्राम डेटा मैं शो करता है जो बिल्कुल डिफरेंट IBBS से। मेरा प्रोग्राम डेटा ये कहता है कि 65% लोग जनरल पॉपुलेशन में से हैं जो ट्रीटमेंट पे हैं, और 35% की पॉपुलेशन में से हैं। और मेरा ख्याल ये है कि ट्रांसजेंडर्स और IDUs के बारे में हम क्लियर हैं। बाकी FSM, MSM, MSW ये लोग अपनी आइडेंटिटी में बता नहीं रहे हमारे रवैयों की वजह से। ये आपको थोड़ा दिखाना कि पाकिस्तान में ये एस्टिमेट है, और ये क्लिनिक तक पहुंचे हैं, और ये लोग ट्रीटमेंट में। ये जो गैप है, ये जो गैप है, इसकी वजह वन ऑफ द रीजन इज स्टिग्मा। ये आप देखें 100% एस्टिमेट्स हैं, तो हम सिर्फ 10% को दवाइयां दे रहे हैं, 90% का गैप है, पॉसिबली ड्यू टू वन ऑफ द रीजन इज स्टिग्मा। ये डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि इन तरीकों से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, बर्तन इस्तेमाल करने से, फोन इस्तेमाल करने से, वॉश इस्तेमाल करने से नहीं फैलता। जो हमारे पास पूरे पाकिस्तान की क्लिनिक्स में, जो HIV क्लिनिक्स में अवेलेबल है,
पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, मेरा इसमें ख्याल है कि तमाम THQ लेवल्स पे इसको होना चाहिए और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हमें करनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं जो हैप बी हेप्सी के लिए भी हैं, उसमें वो हैंड वॉशिंग है, बैरियर्स हैं, ग्लव्स हैं, ग्लासेस हैं, गाउन्स हैं और हॉस्पिटल वेस्ट को ठिकाने लगाना। ये हैप बी की HIV हेप्सी तीनों के लिए है। ये आपको दिखाना है, बहुत अहम एक मैं आगे रखूंगा। HIV का फैलने का 0.1% है चांस है, 1000 में से एक पेशेंट का स्प्रिक होगा। HCV का 2% है, हैप बी का 6 से 30% है। इसका मतलब हाईएस्ट रिस्क हैप बी में है, दरमियाना रिस्क हैप सी में है, HIV में मिनिमम रिस्क है, जबकि हमारा स्टिग्मा सारा HIV में है। ये रेफरेंसेस है। हमारा ख्याल यही है कि हमें जब तक ये जो बुलेट है कि हम जब हॉस्पिटल में फ्लेबोटमी कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, प्रोसीजर्स, एंडोस्कोपी, सर्जरी, सिजेरियन कर रहे हैं, हमें कोई रिस्क नहीं है। हाँ, अगर हमने यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, देयर इज नो रिस्क ड्यूरिंग द प्रोसीजर, क्योंकि हमारा स्किन इंटैक्ट है। तो अगर ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट ना हो, अगर हो तो फिर रिस्क होता है। जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं इसमें ग्लव्स पहन के, देयर इज नो रिस्क। ये मेरी रिकमेंडेशंस हैं कि इसको कैसे करना जाएगा। हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशन को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, सबको लोगों को बताना पड़ेगा व्हाट इज स्टिग्मा फ्री। हमें अपनी अप्रोच को जो है नॉन जजमेंटल करना पड़ेगा। हमें नहीं पता इसको एड्स, हमारा टेस्ट रिजल्ट क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे ब्लड लगा है, मेरी सर्जरी हुई है। किसी की भी माँ बाप बहन भाई को HIV हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर ब्लड बैंक का बहुत बुरा हाल है, स्क्रीनिंग की सिचुएशन बहुत कमजोर है। हमारे करिकुलम को हमें देखना पड़ेगा कि हम HIV की स्टिग्मा को मेनस्ट्रीम किया कि नहीं। तमाम LHV नर्सिंग, तमाम हमारा IC जो है HIV के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा मैं 2007 से लिख रहा हूँ, उस पर आर्टिकल लिखें कि हैप बी हेप सी के साथ हमारा एक IC मटेरियल बनना चाहिए। इसी तरह हमें प्रिकॉशंस पे जोर देना चाहिए। हमें इसके लिए मुस्तकिल TOC चाहिए हर अस्पताल के अंदर, फोकल पर्सन हो जो हर 2 महीने के बाद, क्योंकि हर रोज मुझे फोन आता है कि सिजेरियन रिफ्यूज कर दिया, एंडोस्कोपी रिफ्यूज कर दी, डायलिसिस रिफ्यूज कर दी। ये पूरे पाकिस्तान में IND सिंपल दांत निकालने के लिए जाता है पेशेंट, तो हम रिफ्यूज कर देते हैं। तो मरीज को कहता हूँ फिर अपना स्टेटस आप शो ना करें। जब आप डॉक्टर्स हमारे साथ ये करेंगे तो मरीज भी फिर झूठ बोलेगा। आई एम डन। If there are any questions, I'm here. Thank you very much. Thank you, Dr. Umair, for taking the time to speak to us today on a very important topic indeed. Now, forum is open for question and answer, and meanwhile, I am sharing with you the post-test and evaluation form in chat box. So you can, and forum is open for any question. My advice is, आशिफा, आप या किरण जो क्वेश्चंस रिलेटिवली इंपॉर्टेंट हैं और बर्निंग है, वो 3-4 क्वेश्चंस ले लें, क्योंकि आई थिंक हमारे साथ बहुत सारे ऐसे फिजिशियन मुझे नजर आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर हिना शान भी हैं, डॉक्टर तैयबा भी हैं पंजाब PHCP की माशाल्लाह, डॉक्टर प्रभत दास भी हैं लाड़काना से, सो भी डॉक्टर अजरा हैं सिविल हॉस्पिटल में, पायनियर हमारी बहुत माशाल्लाह, सिंध में आइकन है HIV की। तो दे कैन बेल मी आउट। डॉक्टर कादिर है नवाबशाह से, तो बहुत अच्छा एक मुझे कोहॉर्ट नजर आ रहा है एक्सपर्ट्स का, और मैं क्लिनिशियन नहीं हूँ। तो आप क्वेश्चंस देख लेते हैं, अगर आप समझते हैं तो फिर हम इवन यू कैन गिव द माइक तो प्रभत दास को दे दें, अगर लेना चाहें वो पहले, अगर क्वेश्चंस देख लें पहले। ये उस्मान अली, आई डोंट नो वो क्या कह रहे हो कि अगर आप उनको उस्मान अली को माइक दे दें। Assalamu alaikum. मेरा नाम उस्मान अली है. I'm a medical doctor. I worked previously with the CBO as well, and I identify myself as a gay man. I'm not saying this because it is something fancy. I'm saying this because we need to normalize using these words. We need to understand that these people, they exist. And I also want to criticize on one thing, that an analogy has been made during this talk between people who are disabled and transgender people. This is entirely a different thing. And secondly, when we say that anybody can get infected with HIV, we are assuming that anybody can get infected with HIV from means other than sexual means. And this in itself adds to the stigma. Because जब हम ये कहते हैं, when we say
कि someone is infected with HIV other than sexual means, तो इसका मतलब है कि pious people can get infected, and that is one reason that we should not stigmatize people who are living with HIV, because this the people who are infected is a diverse population. It's not just the sexual transmission. I think this is a very apologetic narrative. The politically correct stance should be that even people who have sexually transmitted HIV, they in themselves, they do not harbor any moral ill. It's not something bad. It's just like another infection that somebody is being infected with. So I mean, Osman, that's my point about you have make your point. Thank you very much. Anybody want to respond? I would like to hear from Dr. Tayyiba, Dr. Sabeen Khan, Shabbir. आप में से कोई बोलना चाहे, बिकॉज आप लोगों की काफी पुरानी एक्सपर्टीज है. डॉक्टर नूरुज़्ज़मान, इफ अगर डॉक्टर रफीक नूरुज़्ज़मान रफीक को दे दें, आई थिंक ही इज अ वंडरफुल एक्सपर्ट. ही इज रनिंग HIV सिंस डेकेड. नूरुज़्ज़मान रफीक, आप कोई कमेंट करना चाहेंगे सर? क्या हम ज़ेन को अनम्यूट कर सकते हैं डॉक्टर नूर रफीक को? I did ask them to unmute themselves. Uzair, can you open? आप सबको unmute कर सकते हैं? आप ये लॉक खोल सकते हैं? Now they can unmute themselves. Okay, Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Hina Shan. I'm an assistant professor in NAMS. This has been a very well presented session, and I really enjoyed it, and I know it's a very important topic. Thanks to Dr. Umair Malik, and the point that has been raised by Mr. Usman Ali is, I guess, very valid. We should keep it in mind. हमने कभी इस एस्पेक्ट से नहीं सोचा कि ये भी कोई पर्सपेक्टिव हो सकता है. दो हम ये समझते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं वो वही है जो मिस्टर उस्मान अली ने कहा, लेकिन we will try to be more careful, especially जब हम students को पढ़ाते हैं, और ये वाला भी aspect we'll keep in mind. Thank you so very much, Dr. Umair. Hats off to you. कोशिश करें इस जो हमारे क्वेश्चन सेशन में इसको एप्रिसिएशन ना करें, इसमें कोई कमेंट हो ताकि बाकी लोगों के लिए भी कोई लर्निंग हो. आई वांट टू लिसन फ्रॉम मैडम तैयबा, मैडम फिजा जी, प्लीज एनीवन. जी, डॉक्टर उमैर, if I could just join in. जी मैडम, प्लीज, मोस्ट वेलकम. जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी उमैर. मैं थोड़ी I'm a bit rusty because आपको पता है I've come back to this place after a long time. अच्छा, मैं सिर्फ देखिए जो स्टिग्मा है, हमने दोनों ने इकट्ठे बहुत लंबा काम किया हुआ है और हमने ये देखा है कि स्टिग्मा इज एन ओवरपावरिंग इमोशन. जब भी आप किसी भी HIV पेशेंट को या कोई HIV पॉजिटिव पर्सन को देखते हैं. अब मैंने जो चीज एक एनालाइज किया है, चले बहुत सी चीजें हैं, बिकॉज यू पॉइंटेड देम आउट, तो मैं फिर वो उस चीज को पॉइंट आउट नहीं करूंगी. वी एज अ नेशन, हम लोग जो सारे हैं ना, बतौर इंसान, वी आर अ स्टिग्मेटाइजिंग पॉपुलेशन. हमें अच्छा लगता है दूसरे को स्टिग्मेटाइज करना, दूसरों की गलतियां पॉइंट आउट करना. सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं. अब ये हम डॉक्टर्स में भी यही चीज देखते हैं कि वो जजमेंटल हो जाते हैं. वो अगला जब भी पेशेंट आता है, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन नॉट HIV एज अ डिजीज, बट HIV किस तरह हुआ, कैसे हुआ, आप तो ऐसे ही होंगे. वो एक जजमेंटल जो हमारा एटीट्यूड है वो बहुत आगे आ जाता है.
तो डॉक्टर्स को तो मैं बिल्कुल ब्लेम करूंगी, और मैं बहुत हद तक इस चीज से एग्री करती हूँ कि जो हमारी की पॉपुलेशंस नहीं जाती हॉस्पिटल्स में, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज कि वो डॉक्टर्स स्टिग्मेटाइज करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर इफ यू वॉक इनटू अ हॉस्पिटल, यू नो बेटर देन मी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सन स्टैंडिंग एट द गेट, वो सबसे पहले जो चौकीदार से लेके अंदर तक हर बंदा जो है वो, स्पेशली ट्रांसजेंडर्स को मैं स्पेशली पॉइंट आउट इसलिए करूंगी बिकॉज दे आर विजिबली डिफरेंट फ्रॉम अस। ठीक है, MSM MSW वो जो है वो हॉस्पिटल्स में आ भी जाते हैं और थोड़ा बहुत चेकअप वगैरह भी करा लेते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर इज वन पॉपुलेशन जो कि बहुत ज्यादा हमारे मुल्क में स्टिग्मेटाइज हो रही है। मैडम तैयबा, एक चीज ऐड कर लूं क्या? जी ये जो सिचुएशन बन रही है, और डॉक्टर सोफिया भी आ गई हैं, जी आई नीड योर कमेंट्स और डॉक्टर सोफिया का, कि क्या हम कम्युनिटी बेस्ड की पॉपुलेशन में जैसे हम सर्विसेज दे रहे हैं, हम उनको लुब्रिकेंट्स दे रहे हैं, कॉन्डोम्स दे रहे हैं, उनको हम प्रिवेंशन सर्विसेज दे रहे हैं, नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम दे रहे हैं, क्या इनके अंदर हम अगर एक जीपी बिठा दें और उसको हम ट्रीट, जो हमारी ट्रेनिंग होती है, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग होती है, सारी जगह पे तो FCPS ID नहीं है ना जमान की तरह, अक्सर जगहों पर हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, किंग एडवर्ड में जैसे मैं हूं, बिल्कुल अगर 2-3 CBOs को मिलाकर एक शहर में हम एक GP को ट्रेन कर दें और उसको हम बजट दे दें, तो वो सिर्फ 9 to 5, एक तो उसके आवर्स फ्रेंडली होंगे, हमारे ड्रग यूजर्स लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं रात को इनके फंक्शंस होते हैं, ये 11 बजे 12 बजे उठते हैं, तो हमारा OPD बंद हो जाता है। तो मेरा ये बिल्कुल सजेशन सही है, कह रहे हैं, बिल्कुल आप, your यस आई एम सॉरी टू कट इन, यू आर एब्सोल्युटली राइट उमर, और आपको पता है ये चीज बहुत दफा डिस्कस हुई थी, और एग्जैक्टली यही था कि जी जब हमारी OPD बंद हो रही होती है उस वक्त ये लोग जो हैं वो जाग रहे होते हैं, बिकॉज नेचुरली दे हैव अ डिफरेंट लाइफस्टाइल फ्रॉम दी अदर पॉपुलेशन, और उस लाइफस्टाइल को अगर आप चाहते हैं कि आप उनको रीच करें, उनको रिटेन करें, उनको ट्रीट करें, तो आपको उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, और जो फैसिलिटेट करने का यही तरीका होता है कि आउटरीच करनी पड़ेगी। दे आर नॉट गोइंग टू कम टू यू, वो हमने उनको इतना ज्यादा स्टिग्मेटाइज कर दिया है कि फॉर अ पर्सन टू वॉक इनटू अ हॉस्पिटल, देखिए हम तो ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं ना, व्हाट ऑफ जो PBTCT सेंटर्स हमारे थे, जो PBTCT सेंटर्स में जब आप एक OPD में खातून बैठी होती है and she's sitting and she will never tell you that she's HIV positive. Or in the ideal scenario, what we would like to do is, or what we would like to have is कि आपकी एक OPD हो जिसमें आपके हर किस्म के पेशेंट हो. There should not be a need for PBTCT. अब क्यों अलग करते हैं? अब HIV जो हेपेटाइटिस है, हालांकि मुझे पता है कि बहुत से हॉस्पिटल्स दे डू हैव जो इनके OTs होते हैं वो दे डू कीप देम सेपरेट, लेकिन सिस्टम आपका इस तरह होना चाहिए कि ये इनकम्पस करें इन सारी चीजों को। और इसमें मुझे एक चीज जो मैंने देखी है, जो मुझे कॉमन डिनोमिनेटर नजर आता है, वो है वेरी पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट को मैं नहीं करूंगी, मैं आई विल जस्ट टॉक अबाउट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देयर इज सच ए, आपका कमेंट चाहिए थे, फिर आपका, फिर डॉक्टर सोफिया का, इवन एग्नेस है, डॉक्टर परेब दास का, कि क्या कम्युनिटी बेस्ड डॉक्टर्स को ट्रेन करके डिप्लॉय किया जाए, क्योंकि हमने ये अगला प्रपोजल बिल्ड किया है 2021-2020 में, हमने कोसोकदा क्लिनिक के नाम से हमने सजेस्ट किया है ग्लोबल फ्रंट को कि इन लोगों के स्टिग्मा को कम करने के लिए इनको कम्युनिटी बेस्ड GP दिया जाए, जिसको नेशनल प्रोग्राम ट्रेन कर दे। फैसल फातिमा आर वंडरफुल ट्रेनर्स, यू नो देम। तो अगर मॉडल पे काम करें तो आई थिंक वी कैन एक्सेस ये जो हिडन पॉपुलेशन है ना हमारी MSM की, देखिए TGs और IDUs तक कुछ ना कुछ हम पहुंच रहे हैं, सच्ची बात है, जो पर लेकिन मेरा प्रोग्राम डेटा कह रहा है कि आप नहीं पहुंच रहे हिडन पॉपुलेशन को। आई थिंक वी नीड टू डू समथिंग आउट ऑफ बॉक्स। तो अगर डॉक्टर सोफिया या आप इस पे कोई कमेंट करना चाहें, वरना जो एग्नेस इज देयर, एग्नेस व्हाट आर योर थॉट्स? एग्नेस, आर यू देयर? Dr. Premdas, can I request to participant to please fill out the post-test and evaluation form while discussing? Dr. Noor Zaman Rafiq, Dr. Premdas, Dr. Sophia, Madam Rosina is here.
Sir, thank you. Can I say something, sir, about it? Please. We have to actually thank you very much for the opportunity, and your presentation was really very impressive. That's what I feel at the moment is that we have to actually work more on the sexual orientation and gender identity. That's one issue which I have observed in that this is the one which can lead to better services and lesser discrimination and stigma. In the recent past, one thing which we can say about as far as the transgenders are concerned, now they know about they need the services, but the main thing is that from where they have to get it. You are absolutely right. If we start actually at like 12 to 8 or something like that, the time should be friendly for them, so that would be much better. So that's what we can do. तो इस तरह की चीजें जो अभी हम बात भी कर रहे थे, we can actually initiate and we can do that. Thank you. Umair, can I cut in? बिल्कुल मैडम, you're most welcome. अच्छा उमर, मैं I totally agree जो डॉक्टर नूर जो आप कह रहे हैं कि आफ्टर OPD hours एक सेटअप होना चाहिए. मैं I totally agree. मुझे थोड़ा सा इससे कंसर्न ये है कि जो हमारा एक जो एटलीस्ट जो which concept I subscribe to is mainstreaming of diseases. यानी कि आपकी हर बीमारी अगर एक इन्फेक्शियस डिजीज है तो टेक इट एज एन इन्फेक्शियस डिजीज, इसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगना चाहिए. मुझे सिर्फ कंसर्न ये कि जारी बात है आप आफ्टर जब आप ओपीडीज वगैरह में आप काम करेंगे तो आई एम श्योर यू विल हैव दीस पीपल कमिंग इन. मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि अगेन यू आर गोइंग टू आइसोलेट दम. मतलब आप जब मेन ओपीडी जब आपके सारे लोग बैठे होते हैं और वो उनको HIV पॉजिटिव एक दरमियान में आके बैठता है, उनका जो एटीट्यूड होता है वो हमें पता है. मैं जो सोच रही हूँ वो ये है कि अगर वही शख्स दिन के वक्त आता है और ही सिटिंग देयर, व्हाई डोंट वी हैव सम टाइप ऑफ अ सिस्टम जो कि उस पीरियड को कोप कर सकता है. लाइक क्यों नहीं हमारे कोई नर्सेज या कोई काउंसलर या ये कह सकती हैं कि हाँ ये बंदा OPD में आया है, ही इज HIV पॉजिटिव बिल्कुल है, बट ही हैज एन इक्वल राइट to access healthcare services. मेरा this is just a thought process. मैं उसको कोई वो नहीं करी, but I'm just holding it out. अगर कोई और इस पे can respond. Sophia, can you want to respond to this query और तैयबा की बात को आप जवाब देना चाहेंगे? Or any volunteer? क्योंकि हम इसको क्लोज कर रहे हैं. We have I think last 2 minutes. मुझे मैसेज आ गया. उमर साहब हम भी पढ़े रहा हूँ मैं. सर आप नजर नहीं आ रहे, मैं ऐनक उतारी हुई है. आपने फोन नहीं किया. जी मैं कह रहा हूँ भी पढ़े रहा हूँ मैं, बलूचिस्तान वाले बेचारे. सर रात से फोन कर रहा हूँ, अब क्या कर सकता हूँ मैं, आपने जवाब ही नहीं दिया. ये अभी जवाब जो है मैं दूंगा. हाजिर सर, प्लीज गो अहेड. सर थैंक यू सो मच सर. अमानुल्लाह काकड़ बात कर रहा हूँ कोयटा से, चीफ एग्जीक्यूटिव सोशियो पाकिस्तान. हम इस वक्त नई जिंदगी के पार्टनर है. हम जो है पीपल वो इंजेक्ट ड्रग्स यूजर्स के साथ हम काम कर रहे हैं. तो इसमें ये कि हम जो है सेम टाइम हम जो है ट्रांसजेंडर MSM और FSWs के साथ भी हमने UNFPA का एक प्रोजेक्ट किया और अभी भी हम सेल्फ हेल्प बेसिस पे कुछ ना कुछ उनके साथ कर रहे हैं. तो लेकिन बदकिस्मती ये कि हेलो आवाज आ रही है? जी आ रही है बिल्कुल. प्लीज गो अहेड काकड़ साहब प्लीज. तो इसमें ये कि इस वक्त जो है ट्रांसजेंडर MSM और FSWs के लिए कोई भी सर्विसेज इस वक्त जो है बलूचिस्तान में नहीं है. मतलब चाहे वो CBO के शक्ल में हो या कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के शक्ल में. अभी हमने ग्लोबल फंड से रिक्वेस्ट की है कि आप जो है CBOs के बजाय CSOs को ले लें, क्योंकि यहाँ पे काम ही नहीं हुआ है. तो वही जो एक प्रोजेक्ट UNFPA का हुआ था उसमें बहुत ज्यादा जो लार्जेस्ट इस वक्त जो कम्युनिटी है जो TGs है उसमें जो है 10% HIV हैं और बहुत सारे जो TGs है वो बेचारे. आई वांट टू रिस्पोंड. काकड़ साहब मैं बताऊं कि लास्ट ग्रांट में जो 17 CBOs थी वो सारी की सारी पंजाब और सिंध बेस्ड थी, बिकॉज उन्होंने देखा था कि 93% केस लोड वहाँ है. इस ग्रांट में चूंकि चारों प्रोविंसेस SR हैं और NACP के पास कुछ नहीं है सवाए पिम्स के, तो आई थिंक कि आप डायरेक्ट UNDP के साथ, और आई थिंक एग्नेस भी बैठी है यहाँ पे, शी इज लिसनिंग. प्रोविंसेस के पास ये राइट है कि अपनी एपिडेमिक को देखें, अपने डिजीज पैटर्न को देखें
और आई थिंक के अदर देन IDUs जो बाकी की पॉपुलेशन उनके लिए काम करें. Agnes, I just want to translate that there is a question from Balochistan that we don't have any services for key population other than PWIDs. I think we need to develop and establish some system in KPK and Balochistan for these key population other than IDUs. Thank you. I think Dr. Umair, we are running short of time. I think we should conclude this session. So I request all the participants to fill the post-test and evaluation form. Ma'am, And excuse me, ma'am, please respond to our question, please. so, Dr. Umair, can you please quickly respond in 1 minute so that we can wrap up the session? I think मुझे पता चल मैं there are 18 or 19 questions. मुझे बताएं मैंने किसका जवाब देना है. I cannot respond. I think Amanullah Kakad is asking some question. Can you please repeat? Mic दें please इनको. ये मैं जब अभी सर आपने UNDP के रिप्रेजेंटेटिव से सवाल किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसका बलूचिस्तान और अब फारिग हैं सर जी. अब we don't have except PIMS. फेडरल के पास सिर्फ अब PIMS हैं. तो अभी डायरेक्टली प्रोविंसेस SR हैं with UNDP और because Agnes is there. So you is representative of. Yes, please. तो आप UNDP को दोबारा कहें. मैं भूल गया मैडम फरहाना जुबैरी को बुलाना, लेकिन चूंकि काफी वाइडली डिसेमिनेट किया था इस इशू को ना प्रोविंस के जो DG हेल्थ की तरफ से और प्रोग्राम मैनेजर की तरफ से बार बार इसको रिमाइंडर देना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में, क्योंकि सिर्फ IDUs तो नहीं है ना, वो तो हम उसके अलावा बाकी की पॉपुलेशन पिछली ग्रांट में भी रह गई थी. और फिर अचानक फिर एक एपिडेमिक फैलेगा तो फिर हम लोग रिएक्शनरी अप्रोच पे काम कर रहे हैं. कि तो देर होगा तो रिस्पॉन्ड करेंगे जी, प्लीज. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू एवरीवन. मैंने पोस्ट टेस्ट और वैल्यूएशन फॉर्म चैट बॉक्स पे शेयर कर दिए हैं, तो आप काइंडली इसको फिलअप कर दें. और since this activity is free of cost, but if you want to get a e-certificate, so I'm going to share the details for this. So मैं chat box में आपके साथ details share कर रही हूँ. So this is it from my side. Now over to you, Kiran. Thank you so much. Thank you, Ashika. Hopefully उज़ैर आपने YouTube का लिंक भी शेयर कर दिया होगा. आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग उस लिंक के साथ आप उसको कर सकते हैं. और इसके अलावा भी लिंक्स शेयर हुए थे शुरू में भी हमारे फेसबुक, ट्विटर और चैनल अकाउंट्स के. So we are grateful to Dr. Umair and thankful to our other experts and participants. I would like to thank Dr. Asad Ali Chaudhry, our director, Dr. Amna, our facilitator, Uzair, our coordinator, Haris for IT support, and Salman. Allah Hafiz. Uzair, you may call off the session, please.